Well, let's come back. Listen. So, motion of center of mass कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं और कैसे कोरिलेट करते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनो. सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या लिखा था फॉर डिस्क्रीट मास सिस्टम? Summation mi xi by summation mi. Now, if we don't take x, y and z separately, instead I want to write them down together. You know that any point in the 3D plane can be represented by a vector called position vector, which is xi plus y. zk, where x, y, z is the position coordinates of that particular point, right? So अगर हम लोग सोच लेते हैं कि m1 जो बॉडी है वो पोजीशन r1 में, m2 जो बॉडी है वो पोजीशन r2 में है. ऐसे डॉट डॉट बहुत सारे बॉडीज है mn which is at the position of rn. तब we can write the position vector of the center of mass rcom is equal to m1 r1 plus m2 r2 dot up to mn rn by m1 plus m2 mn, right? तो ये लिखना और ये लिखने में कोई फर्क ना, यूनिट वेक्टर ना, पोजीशन वेक्टर का टर्म्स. ये जो r मैंने लिखा है ये पोजीशन वेक्टर है. अगर ये यूनिट वेक्टर होता तो ये r कैप से रिप्रेजेंट करते, राइट? हाँ, पोजीशन वेक्टर को यहाँ पर यूनिट वेक्टर्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया गया है, लेकिन उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है. हम लोग सिर्फ बोल रहे हैं कि सारा जो मासेस है, सारा मासेस का अगर पोजीशंस हम लोगों को पता है तो हम लोग उसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कोऑर्डिनेट ऐसे निकाल सकते हैं. तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि ये अगर टोटल मास है उसका, इसका m into r of com is equal to m1 r1 plus m2 r2 up to mn rn लिख सकते हैं हम लोग. ये है the relation between the center of mass and the vectors, position vectors of all the individual masses, right? अगर हम लोग ये वाला एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करते हैं with respect to time के रेस्पेक्ट, तो क्या देगा हम लोग को? पोजीशन अगर चेंज वेरिएबल पोजीशन है तो उसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, क्या मिलता है? वेलोसिटी. सो इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो m dt of rcom is equal to m1 dt of r1 m2 dt of r2 mn dt of rn, right? ये होगा. तो ये सारा will represent the velocity of individual particles and this is the velocity of the center of mass. मतलब m vcm is equal to m1 v1 plus m2 v2 dot up to mn. ठीक है? मतलब this is basically saying mass into velocity of the center of mass, that is the total momentum, is the resultant of the individual momentums. Is that clear? The total momentum of the center of mass is equal to individual resultant of the individual momentums. जब मान लो एक कैनन हवा में फायर किया जाता है, you know what is a cannon? हाँ, right, तो अब मान लो वो गोला जाके एयर में बर्स्ट करता है, ठीक है? बर्स्ट करने से it gets fragmented into many fragments. So all those fragments they move in all possible directions. But if you identify all the points and find out the center of mass of all the points, you'll find that वो जैसे नॉर्मल प्रोजेक्टाइल जाता है ना, उसका सेंटर ऑफ मास वैसे ही जाएगा. ऑल्दो यहाँ पर मान लो वो 3 टुकड़े में टूट चुका है. So the 3 fragments will be traveling in different directions. But तुम लोग अगर उसका center of mass निकालोगे तीनों fragment का, then you'll find that the center of mass exactly travels a projectile. उसको जैसे प्रोजेक्टाइल ट्रैवल करना था, कैनन मतलब क्या है, प्रोजेक्टाइल थ्रो कर रहे हैं ना, तो प्रोजेक्टाइल जैसे जाना चाहिए था, उसका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली वैसे ही ट्रैवल करेगा, वो चेंज नहीं. उसका हाँ राइट. तो यही बोले ना, तीनों अलग अलग पार्टिकल तो टूटा तो सबका अलग अलग वेलोसिटी होगा.
वो अलग बात है, सबका अलग अलग वेलोसिटी होगा, लेकिन तीनों का अगर सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकालेंगे ना, तब देखेंगे एग्जैक्टली यही वाला पाथ पे उड़ जाएगा। They are traveling exactly along the same. Sir, can you derive? Yeah, we can derive that. We can. It might be a little complex, but you can always derive. Sir, is sometimes G advanced level একটা question আমি এটা পড়েছি But পারিনি করতে। পারবে। তিনটে টুকরোতে এই যে ফাইনাল ভেলোসিটি বার করতে বলেছি খুব সোজা। Conservation of linear momentum along x-axis, y-axis আর z-axis apply করলেই হয়ে যাবে। It is not a very difficult sum. খুব সোজা অঙ্ক। আমি করিয়ে দেবো, কোনো difficult নয়। স্যার সব করা দেবে First, now let us understand. ये समझ में आया ना कि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी जो है वो इंडिविजुअल पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है, बट इफ देयर इज नो रिजल्टेंट एक्सटर्नल मोशन और एक्सटर्नल फोर्स व्हिच इज चेंजिंग द पाथ, तो सेंटर ऑफ मास का फाइनल पाथ वही रहेगा इफ यू फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दिस थिंग्स। नाउ वेलोसिटी को अगर हम लोग और एक बार डिफरेंशिएट करते हैं Acceleration. फोर्स सो So we get force. एक तो लिखना सारे शॉर्ट में करें, देयर इज नथिंग मोर टू अंडरस्टैंड आउट हियर। ना चैप्टर सुनो, ये चैप्टर नहीं है, एक चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक है। चैप्टर बहुत बड़ा है चैप्टर का असली चीज शुरू होगा नेक्स्ट क्लास मुझे चाहिए एक महीना लगेगा रोटेशनल मैकेनिक्स। एक महीना लगेगा ना एक महीना नहीं, फ्री ऑफ द एक क्लास रहेगा। हाँ, V1 V2 Vn, so you know velocity का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम लोग क्या मिलता है, एक्सीलरेशन ऑफ c1, m1 a1 प्लस m2 क्या समझ नहीं आया, बोलो राहुल। कुछ नहीं समझ कुछ भी समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया बोले। अकॉर्डिंग टू फेज 1 कैलकुलेशन लेके साइंस सेक्शन में আমাদের কথা বলুন যে চলে যাবে লাস্ট সেন্টার देखो फाइनली जब हम लोग सेकंड टाइम डिफरेंशिएट किए, व्हाट वी गेट, मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1a1 plus m2a2 डॉट mna। अब ma1 is nothing but the force, so we are writing it as f1, this is the second force, ऐसे करके जितना भी फोर्स एक्ट कर रहा है this is the resultant of all the forces, so resultant of all the forces is equal to mass into acceleration of center of mass। यही हम लोगों ने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में यूज किया था, राइट, यूज करके सम सॉल्व किया। सर is resultant of all the forces equal to mass into acceleration, so this means mass into acceleration of COM is equal to F net external। You remember F net external क्यों लिखे, क्योंकि external resultant force C mass into acceleration, हाँ, internal forces doesn't bring about any change in acceleration। যে পার্টিকেলটা এইদিকে চলে যাচ্ছে তার ট্র্যাজেক্টরিটা এরকম হবে কেন? আরে সব কটা ট্র্যাজেক্টরি এরকম হবে না, এই তিনটের রেজাল্টেন্টটা যদি আমি মোশনটা বার করি তাহলে তার ট্র্যাজেক্টরিটা এরকম হবে। सर वेलोसिटी वेक्टर में चेंज देखो ये तीनों का वेलोसिटी अलग अलग होगा, v1 v2 v3, और इन लोगों का प्रोजेक्टाइल भी अलग अलग होगा, इसका ऐसे गिरेगा, इसका ऐसे गिरेगा, इसका ऐसे गिरेगा, लेकिन इन तीनों का रिजल्टेंट कोई भी इंस्टेंट में निकालोगे ना तो वो एग्जैक्टली ये वाला पाथ के ऊपर से ही जाएगा। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, समझा? यस सर sir, that you have a link to কোনটা ওটা ওটা কিভাবে লিখবো, লিখবো না তো আমরা প্রজেক্টাইল সে কি করেছিলাম, ইফ দে আস্ক ইউ টু ফাইন্ড আউট দ্য ভেলোসিটি রেজাল্টেন্ট ভেলোসিটি এট এনি পয়েন্ট, সেটা কি তুমি একবার একটা ইকুয়েশন দিয়ে ডেরিভ করতে পারতে, vx আলাদা করে করতে হতো, vy আলাদা করে করে তারপরে রেজাল্টেন্ট বার করতে হতো। দ্য সেম থিং ওভার হিয়ার, v1 v2 আর v3 জানা আছে, তিনটে আলাদা আলাদা প্রজেক্টাইল, যে কোনো একটা ইনস্ট্যান্টে তিনটের ভেলোসিটি আলাদা আলাদা করে বার করব, সেটা বার করতে পারবো তো। তারপরে সেই ভেলোসিটি গুলোর যদি আমি রেজাল্টেন্ট বার করি, মোমেন্টাম গুলো, ভেলোসিটি না, মোমেন্টাম গুলোর রেজাল্টেন্ট বার করি, আই উইল ফাইন্ড দ্যাট ইট ইজ লাইং অন দিস পাথ, এই পাথে লাইং। বুঝা গেছে? হ্যাঁ, এটা লিখে না ঝটপট। नहीं और नहीं। Well, so let's take up a example and understand how the motion, center of mass motion takes place.
say there is a plank which is lying on say water, a raft on water, और वहां पर फ्रिक्शन एकदम नेग्लिजिबल है, कोई फ्रिक्शन लेने का जरूरत नहीं। अब मान लो यहाँ पर सचिन खड़ा है, जॉली फीलिंग ठीक है। अब नाउ से वो लाल नहीं होगा। सचिन क्या किया, सचिन का मास स्मॉल m है सर डेल्टा एम लिखिए, और ये डेल्टा एम लिख के थोड़ा इज्जत दे दीजिए सर मेरे को, वरना डेल्टा एम लिख के है। बहुत अपना बेइज्जती खुद करता है। अच्छा मान लो ये सचिन है और ये प्लैंक का मास कैपिटल M है और इसका मास स्मॉल m। नाउ इफ you can calculate the center of mass of this whole system, उसका पूरा चीज का center of mass ये वाला पोजीशन का है। Let the center of mass be at this position। देखो exactly center में मैंने नहीं ड्रॉ किया, थोड़ा सा लेफ्ट में क्यों दिया, because हाँ इधर मास ज्यादा है। यूनिफॉर्म हाँ यूनिफॉर्म अगर डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो इसका सेंटर में होना चाहिए था सेंटर ऑफ मास, तो मैंने थोड़ा लेफ्ट में क्यों ड्रॉ किया, ताकि मुझे मालूम है कि इधर मास थोड़ा ज्यादा। अब listen to it very carefully। If he walks from this end to this end, then what will happen? मान लो ये पूरा बॉडी का जो प्लैंक है, प्लैंक का सेंटर ऑफ मास इसका सेंटर में था, याद है? तो क्या वो प्लैंक अपने जगह में रहेगा? क्या होगा? मिलेगा। राइट। अगर वो इधर वर्क करके गया तो प्लैंक जो है वो लेफ्ट में आ जाएगा। क्यों? सेंटर ऑफ मास नहीं बदलेगा, वो अपना फिक्स पोजीशन में रहेगा। क्यों? राइट, इनिशियल सेंटर ऑफ मास यहाँ था ना, तो जब ये इस साइड आ जाएगा पूरा, तब ये प्लैंक जो है ना ये ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। मतलब प्लैंक का सेंटर ऑफ मास यहाँ आ जाएगा और ये जो सचिन है ये भी यहाँ आ जाएगा। तो देखो दोनों को मिला के जो सेंटर ऑफ मास है ना उसका पोजीशन चेंज क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज करेगा अगर एक्सटर्नल फोर्स रहेगा तब। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहेगा तब सेंटर ऑफ मास जहां है वही रहेगा। लेकिन इंडिविजुअल बॉडीज अपना पोजीशंस चेंज ना, इंडिविजुअल बॉडीज अपना पोजीशन चेंज कर सकता है। जैसे सचिन यहाँ था, वो वर्क करके यहाँ आ गया, सो क्या हुआ, उसका पोजीशन चेंज किया। साथ साथ ये जो प्लैंक था, प्लैंक का भी पोजीशन, लेकिन दोनों का जो रिजल्टेंट सेंटर ऑफ मास था वो पोजीशन एक ही जगह में बच गया। समझा? So whenever bodies move on one another, external कोई forces काम नहीं कर, तब एक बॉडी मूव करेगा तो दूसरा बॉडी कभी रेस्ट में नहीं हो सकता है। ठीक है, दूसरा बॉडी कभी भी रेस्ट में नहीं हो सकता है। Say you are stuck on the middle of a big flat ice floor. आइसबर्ग। आइसबर्ग क्या होता है और आइस फ्लोर क्या होता है, समझ में आता है? अरे आइसबर्ग टाइटैनिक ब्रो बहुत बड़ा होता है। अनपढ़ के तरह बात मत करो थोड़ा। Have you seen ice skating? वो कहाँ पर होता है? आइसबर्ग के ऊपर। नहीं, वो तो आइस के ऊपर होता है। राइट, समझ में आया? वैसे मान लो एक आइस स्केटिंग प्लेस है जिसके बीच में तुम फंसे हुए हो, मान लो उसके बीच में हो। सो हाउ डू यू गेट आउट ऑफ इट? आगे पीछे करेंगे तो पड़ेगा। हाँ, वो आइस जो है ऐसे प्लेटफॉर्म के जैसे नहीं है, वो फिक्स्ड है। ऐसे नॉर्मल एक फ्लोर है, ठीक है, एक नॉर्मल फ्लोर है, फिक्स्ड फ्लोर, अ बिग वन जो मूव सामने नहीं करेगा। फोर्स लगाएंगे। You are at the middle of it and you want to go to the end, कोई दूसरा एंड में जाना है। तुम अगर खड़े हो जाते हो, खड़े होके वॉक करोगे तो तुम वॉक नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि वो स्लिपरी होता है। स्लिपरी होता है इसलिए तुम अगर सामने वॉक करने जाओगे तो तुम मुंह के बल गिर जाओगे। समझ में आया? यस। Slide করার জন্য you need to apply force on somebody else, right? जितना वो डंडा नहीं, सर डंडा नहीं। सर झुकना पड़ेगा। Who
झुकने से क्या होगा सागर? झुकने से तुम सामने जा पाओगे? You need to have a resultant external force to move in the any direction. कोई भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए एक रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स चाहिए ना, तो वो रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स कौन देगा? क्योंकि फ्रिक्शन नहीं होगा, फ्रिक्शन नहीं, Oh, friction जीरो होगा, नहीं क्योंकि था। आइस फ्लोर इसीलिए बोल रहे हैं ना, आइस फ्लोर इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि वहां पर कोई फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा है। अज्यूम कर लो, ऑब्वियसली नॉर्मल आइस फ्लोर में फ्रिक्शन एक्ट करता है, हाँ। लेकिन आइस स्केटिंग जहां पर होता है ना, वहां पर अगर तुम नॉर्मल शू पहन के जाओगे ना तो चल नहीं Yes. पाओगे, you just slip and fall down। I have gone. वहां पर That's it. आइस स्केटिंग करने के लिए उन लोगों का जो शूज के नीचे मेटल ब्लेड्स लगा हुआ होता हाँ। है, वो ब्लेड्स चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि वो ब्लेड रहने से क्या होता है, रेजिलेशन के कारण आइस मेल्ट कर जाता है और वहां पर वो अटक जाता है वो जगह में। What is Priyanka, you know what is रेजिलेशन? हाँ, रेजिलेशन इज मेल्टिंग ऑफ आइस अंडर प्रेशर। अगर एक आइस लोगे, उसको अगर एक कोई भी चीज से प्रेशर क्रिएट करोगे ना, जहां पर प्रेशर क्रिएट करोगे वहां पर वो मेल्ट कर जाएगा, इट विल मेल्ट। मतलब कि अपना बॉडी का मैक्सिमम वेट एक टाइम पे रखने के उसके बाद लेकिन तुमको एक्सटर्नल फोर्स कहां से मिलेगा राहुल? तुम अपने आप से जब तुम चलते हो ना, जब व्हेन यू वॉक ऑन अ फ्लोर, ये हम लोग फ्रिक्शन जब पढ़े थे सिखाए थे कि तुम क्या करते हो, फ्लोर को पीछे धकेलते हो और फ्लोर तुमको फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में देता है, इसलिए तुम जा पाते हो। अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा, तुम फ्लोर को पीछे पैर लगाओगे, लगाने से तुम्हारा पैर ही पीछे चला जाएगा, राइट, पैर ही पीछे चला जाएगा और तुम गिर जाओगे। नहीं, you need to throw something out of yourself. नाखून से You need to throw something out of your system. अपना सिस्टम से कुछ चीज थ्रो आउट करना पड़ेगा। Say if you wearing a jacket, you pull up the jacket and throw out the jacket. जैसा स्पेस में होता है। Exactly. Throw out the jacket, then you will experience a opposite directional force because of the jacket applying some force back on you. अच्छा। And that is how you can make a वो जेटा स्पेसिस पर आश्रम से मैं मुख पर जुड़े का था Exactly. कभी जैकेट जामा पहनते के लिए तो जामा That is a different issue. কিন্তু at least বরফের মাঝখানে পড়তে তো হবে না, একটা এন্ডে যেতে হবে। আচ্ছা, anyhow, now why did I take up this example? Because of the next topic. The next topic is rocket propulsion. Rocket propulsion में भी ऐसा ही concept use होता है। When the rocket moves in the upward direction, वो move कैसे करता है? By ejecting a huge amount of gas in the downward direction. So जब वो गैस को इजेक्ट करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करता है इन द अपवर्ड डायरेक्शन, जिसके कारण वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकता है। भाई बोलो ठीक है? के रॉकेट चले गए ना